लॉ ऑफ सप्लाई, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है लॉ ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। जल्दी से बोले लॉ ऑफ सप्लाई इशिका। कभी भी लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन करेंगे तो क्या स्टार्ट होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कंटिन्यू। क्वांटिटी सप्लाइड, करेक्ट। Other things remaining constant, there is a direct or a positive relationship between price of the commodity and its quantity supplied. That is, when the price rises, quantity supplied rises. When the price falls, quantity supplied also falls. Law of supply. It states the direct relationship between price and quantity supplied, keeping other factors constant. Ceteris paribus. Please, you should know ceteris paribus also. I think that is Latin or Greek, whatever. But एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ceteris paribus, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो ceteris paribus, other factors remaining constant. Ceteris paribus is keeping other factors as constant. Other factors, what are the other factors they are talking about? Ridhima, कौन से factors? Keeping other factors constant, there is a direct relationship between price of a commodity and its quantity supplied. What are the other factors they are talking about? जल्दी बोलें, बी लाउड एंड क्लियर। नहीं पता तो बस पास। हाँ, सिंपल। करेक्ट। फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो बाकी सारे, जैसे कि सारे आ जाएंगे। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, वो सेम है। गोल्स ऑफ द फर्म, अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस, प्राइस के अलावा। अच्छा, तो मतलब ये नहीं पता था आपको, ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन मत दो। We know price is the dominant factor in determining the supply of a commodity. As price of the commodity increases, there is more supply of that commodity. ठीक है। Assumptions, ceteris paribus. Assumptions of law of supply क्या है? Ceteris paribus. ये assumptions of supply. What is ceteris paribus? तो ये assumption है आपकी बहुत ही बड़ी कि भैया लॉ ऑफ सप्लाई तभी होल्ड ट्रू करेगा, तभी वैलिड होगा when other factors are kept constant. फिर एक एक करके assumption हो गई। प्राइस ऑफ, फिर आप एक एक फैक्टर बोल देंगे। प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट, there is no change in technology, price of factors of production remains constant, no change in taxation and subsidies, goals of the firm remain the same. तो मैंने बताया ना, assumptions क्या है? ceteris paribus, other factors remaining constant. easy रखें अपना काम। clear? Important points about law of supply. It states a positive relationship, assuming other factors are constant. It is a qualitative statement, very, very important, but very, very important. It is a qualitative statement. मतलब, it is a qualitative statement. मतलब, आरव नालायक। और कौन है नालायक? एम। गुड। सुना है पहले कभी? It is a repetition. It is a repetition. Law of demand is a qualitative statement. Elasticity of demand quantifies it. Law of supply is a qualitative statement. Elasticity of supply will quantify it. सर मतलब समझ नहीं आया, एक बार बताओ ना। Qualitative statement मतलब लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन मतलब प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी ये नहीं बता रहा। समझ आ गई बात? तो व्हाई इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट? इट इज जस्ट टेलिंग अस अबाउट द डायरेक्शन, नॉट द मैग्नीट्यूड। क्वांटिफाई नहीं कर रहा उसको। क्वांटिफाई कौन करेगा? इलास्टिसिटी। गुड। तो नालायक और इंटेलिजेंट का सफर बहुत छोटा होता है, बट वो स्टेप्स लेने होते हैं। इट इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट एज इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, does not indicate the magnitude. It does not establish any proportional relationship between change in price. मतलब वो quantify नहीं कर रहा है। Law is one sided. Law is, ये important point होता है,
ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में सोच लियो, वो भी इंपॉर्टेंट होगा बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ। वन साइडेड है मतलब वो ये बता रहा है कि अगर प्राइस 10 रुपए से 11 रुपए हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी, अगर 11 से 12 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी, वो ये बता रहा है। तो सर दो हो गए ना, प्राइस और क्वांटिटी, टू साइडेड नहीं। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है ये बता रहा है, क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस कितना चेंज होगा ये नहीं बता सकता लॉ ऑफ सप्लाई। बात समझ आ रही है सर? लेकिन 10 पे 8 यूनिट्स बेच रहे तो 8 यूनिट्स 10 रुपए पे बेच रहे ना, यही सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और यही नीचे भी आती हैं। तो ये पॉइंट समझ आ रहा है कि वन साइडेड है। प्राइस 10 रुपए से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई आप क्या बिजनेस करना चाहेंगे, कुछ भी, कपड़े बेचना चाहते हैं आप, जीन्स बेचते हैं, ठीक है ना, जीन्स बेचते हैं, 1000 रुपए की होगी तो कितनी यूनिट्स बेचोगे, और 2000 की होगी तो आप ये बता सकते हो कि 1000 पे कितनी बेचोगे, 2000 पे कितनी बेचोगे, 3000 पे कितनी बेचोगे, 4000। तो लॉ सप्लाई कह रहा है ये बता सकते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा 40 यूनिट्स कितने प्राइस पे, कितना प्राइस चार्ज करना चाहोगे, कह रहे ये लॉ सप्लाई स्टडी नहीं करता, ये लॉ सप्लाई स्टडी नहीं करता। वो पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि प्राइस कितना ऑफर करोगे, तो मैं बता सकता हूं कि मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। आप प्राइस बताओ तो मैं क्वांटिटी बताता हूं, आप क्वांटिटी बताओ तो मैं प्राइस नहीं बता सकता। लॉ ऑफ सप्लाई इज वन साइडेड। क्लियर? आंखें खुल नहीं रही बेटी? Law is one-sided as it explains only the effect of change in price on the supply and not the effect of change in supply on the price. सप्लाई के चेंज होने का इंपैक्ट वो प्राइस पे स्टडी नहीं कर सकता, प्राइस के चेंज होने का इंपैक्ट वो सप्लाई पे स्टडी कर सकता है।